So welcome all to our YouTube channel Gyan Academy. So myself Dr. Jasdeep and I will be discussing plus 2 physics with you. तो थोड़ा आज लेक्चर में जाने से पहले I will try to give you a glimpse about Gyan Academy. तो Gyan Academy it is formed by a group of individuals who are really motivated and who are studied from very prestigious universities. Like most of them are from IITs. And presently they are working all around the globe in various universities. Like if I talk about myself, I did my PhD in mechanical engineering from Indian Institute of Technology, and presently I am working in a university at Canada. Now coming to the objective of making this channel, our prime objective was to discuss the science with the student in as simple as a way as possible. ये तो हमारा प्राइम एम था कि साइंस तो डिस्कस करनी है। साथ के साथ जब हम यहाँ आए जॉब के पर्पस से, हमने रियलाइज किया कि people in India, they are lagging a lot in terms of the knowledge of how to get into this universities for their education. और जब हम यहाँ आए तो हमें रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट इवन दैट डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी. तो विद दिस वी मेड दिस चैनल. तो हमारा सेकंड जो मोटिव है, द सेकेंडरी मोटिव, इट विल बी टू डिस्कस द प्रोसीजर और द प्रोटोकॉल of how you can get into this universities, and we will also try to share the glimpse of the life which we experience at this universities और IITs वगैरह में लाइफ कैसा होता है. We will also try to discuss that, and along with that we will also try to bring some eminent personalities among you which can discuss their experience with you. Like they can be professors from different universities, or they can be industry personals from very reputed or high-end industries. So this was the aim behind making this channel. But primary aim, it is to disseminate the knowledge among our fellow beings. So thank you for watching us, and I hope you will keep on watching us. And with this, I welcome you all to our channel Gyan Academy. So let's start our today's lecture. So the next topic which we have is, it is the electric field intensity due to a charged ring. So this question or this topic, it is also very important from a board point of view. कई बार तो ऐसे direct derivation ही पूछ लेते हैं, and that too in 5 marks. So in that aspect also it is very important, and at the same time it is also very important from the board from the competitive point of view. ठीक है. तो एक बात आप याद रखिएगा, अभी तक हमने जितना भी कूलम्स लॉ डिस्कस किया है, वी डिस्कस द कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ हमेशा यही कहता था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम इट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस. और जो assumption था कूलम लॉ का, it was based upon a assumption that two charges are the point charges. Two charges are point charges. But now we will start to discuss something related to the charges which are not point charges but they are uniformly distributed. ठीक है. अगर तो point charges हैं, we can directly use our Coulomb's law which says this. But if our charges, they are not point charges, we cannot directly use this, but yes we can use it in a way. तो आज हम वही तरीका जो है यूज करने का वो डिस्कस करेंगे. तो टुडे सबसे पहले we will start with electric field intensity on a ring due to uniformly distributed charges. ठीक है. तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझिएगा इस चीज को कि I have a ring. I will try to be slow ताकि मैं
सफाई से बना सकूं उसे, तो सपोज आई हैव ए रिंग विच हैज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन टू इट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? हर जगह वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ भी है, 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 everywhere it is uniformly distributed. So what I am asked for is, I am asked to calculate the charge on the charge on a axis which lies on the center of this ring. Center में मान लेता हूं O है. I assume center of ring SO, or I have to calculate the electric field intensity on the axis of ring at a distance x from the center. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है that is x. So see, other thing which I know is the radius. ठीक है, तो ये रिंग का रेडियस आई नो, रेडियस आई अज्यूम इट टू बी r. तो रेडियस r. Other than this, I do not know anything about this. ठीक है, अब you will agree with me कि I can take a very small element out of this. I will tell you why I am doing this. मेरा इंटेंशन है मैं इतना छोटा एलिमेंट लूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट चार्ज. तो अगर मैं इस एलिमेंट का डिस्टेंस यहां से देखूं तो इट इज r. ओके, अब यू विल एग्री विद मी ऑन दिस थिंग कि अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट में इसके रिंग के ऊपर एक एलिमेंट लूं, एग्जैक्टली ऑपोजिट इसके, और अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं, इट विल अगेन बी r. राइट? तो इस तरह से आपके, अगर मैं इसे थोड़ा 2D में बनाने की कोशिश करूं, सपोज आई एम व्यूइंग दिस रिंग फ्रॉम द टॉप साइड और मैंने रिंग जमीन पे रखा हुआ है. ठीक है, मैंने रिंग ग्राउंड पे रख दिया और मैं एक पॉइंट है जो रिंग से काफी ऊपर है, जमीन से ऊपर है कोई पॉइंट. अगर मैं उस पॉइंट से रिंग के पेरिफेरी का डिस्टेंस देखूंगा, किसी भी पेरिफेरी का देखूं, तो इट विल बी सेम. अब अगर रिंग की जगह पे हम टायर ले लें, सपोज आई से आई हैव ए टायर ऑफ ए बाइक, आई हैव ए टायर ऑफ ए कार, तो आई हैव kept it on to द ग्राउंड, और मैं ऊपर से खड़ा होके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मैं डिस्टेंस देख रहा हूं कि उसके जो सरकमफ्रेंस है उस पॉइंट तक का क्या डिस्टेंस है. तो आप कहेंगे सर इट विल बी सेम. तो ये थोड़ा सा वैसा केस हो गया जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये रिंग है और ये पॉइंट है, तो मैं पहली डिस्टेंस यहां तक देखता हूं, फिर यहां तक देखता हूं, है ना, फिर मैं यहां तक देखता हूं, फिर मैं यहां तक देखता हूं. तो आप कहेंगे सर ये तो कोन ही बन गया हमारा. तो यस, इट इज कोन. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज माय r इज आल्सो कांस्टेंट. ठीक है, एक मेरा सॉरी रेडियस कांस्टेंट हो गया, एक मेरा स्मॉल r विच इज द डिस्टेंस, इट इज आल्सो कांस्टेंट. और अगर ये मैं एंगल मान लीजिए, इसे आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल टू बी थीटा, तो आप कहेंगे सर ये एंगल भी तो कांस्टेंट ही होगा. मैं किसी भी पॉइंट से, मान लीजिए मैं यहां से इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस देख रहा हूं, तो एंगल बिटवीन दिस पॉइंट एंड टू दिस पेरिफेरी, it will be theta. It will make theta angle with the center. And similarly,
अगर मैं दूसरे साइड से देखूं तो इट विल अगेन बी थीटा। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं इट विल अगेन बी थीटा। एंड similarly for this, if I see from here to here, the angle it will be theta, and similarly if I see from here to here, again it will be theta. So it means my theta is also constant. तो हमारे पास इतनी कांस्टेंट हो गई। रेडियस इट इज कांस्टेंट, वी नो दैट। आर इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है टू द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, it is also constant. Then we have theta, it is also constant. So we have three constant with us. तो अब मैं कहूंगा भी आपको याद होगा भी हाउ वी वर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बिकॉज ऑफ ए चार्ज। तो आप कहेंगे सर हम एक टेस्ट चार्ज लिया करते थे, वी यूज टू कीप ए टेस्ट चार्ज, और उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिस डायरेक्शन में लग रहा था दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने कहा हमें इस पॉइंट पे, चलिए इसे P मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, आई विल नॉट राइट P ओवर हियर क्योंकि वो फिर बड़ा मैसी हो जाएगा, वैसे पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टेस्ट चार्ज ले आइए विच इज ऑलवेज ऑफ ए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो इट विल, और अगर मैं इसे अब मैं सिर्फ अब ये पॉइंट चार्ज को देख रहा हूं, ये जो मैंने कंसिडर किया है कि दिस इज द पॉइंट चार्ज विच इज क्यू एंड विच हैज डायमेंशन ऑफ dn। ठीक है, वैसे जो सारी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू है, कैपिटल क्यू, एंड इट हैज बिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और हमें कहा गया है कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो नहीं होगी ना, इट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर देयर। पर अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आप कहेंगे सर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी बहुत छोटी होगी क्योंकि पॉइंट चार्ज हमारा बड़ा छोटा है, हमने डी दिया है, आई विल से यस, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू डी। तो अब आई विल ट्राई टू डू लिटिल बिट ऑफ मैथ। तो if what I do is I try to extend this line, so you will agree with me that if this line is extended, this angle it will be theta. Yes, so it will be theta. तो अगर मैं इस DE के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखूं, it will be DE cos theta. And if I see the component in this direction, it will be DE sin theta. ठीक है, तो I have two component. अब this DE cos theta, it is acting in x direction and it is also acting perpendicular to the plane of ring. ठीक है, तो some books they also use this as a nomenclature, और ये वाला जो है इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द रिंग। देखिए डाउन साइड जा रहा है और रिंग के पैरेलल है, सम बुक्स कॉल इट टू बी पैरेलल। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज समझिएगा, ये वाला जो एलिमेंट हमने लिया है, ये वाला दिस वन इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस। और अब सिमेट्री की वजह से अगर आप यहाँ पे, मैं कहूँ भी इसकी वजह से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, आप कहेंगे सर भी इसकी वजह से इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे मैं 1 ले लेता हूँ, इसे मैं 2 ले लेता हूँ, तो इट विल बी DE2, राइट। So I think I should be erasing little bit of it so it will be convenient for you. तो हमें कांस्टेंट पता लग गई क्या क्या थी।
One is small r, one is theta, and one is capital R, which is the radius. ठीक है, तो अब इस वजह से अब मैग्नीट्यूड dq1 और dq2 का एग्जैक्टली सेम है, डिस्टेंस भी दोनों आर आर पे पड़े हैं, तो ये अगर DE1 है तो DE2 इट विल बी एग्जैक्टली सेम. ठीक है, और सेम ये वाला एंगल इट विल अगेन बी थीटा, राइट, इट विल अगेन बी थीटा. And again, I will have two components. One will be acting in this direction, and other it will be acting in this direction. तो आप कहेंगे सर भी अगर ये वाला कंपोनेंट हम देखें, एक तो DE1 साइन थीटा हो गया और दूसरा DE2 साइन थीटा हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही इक्वल है, पर दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो इसका मतलब क्या कि दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर. यस, दे विल कैंसल आउट ईच अदर. और अगर मैं ये वाले कंपोनेंट देखूं कॉस वाले, DE1 कॉस थीटा या DE2 कॉस थीटा और DE1 कॉस थीटा, तो दे विल बी एडिंग अप. DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा. ठीक है, तो दे विल बी एडिंग अप. तो यहां तक बात आपको समझ आ गया. तो क्रक्स क्या निकला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट विल, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं लिखूं जैसे पहले हमें लग रहा था भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच आर एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एक्स की डायरेक्शन में, प्लस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट. पर अब पैरेलल कंपोनेंट तो सारे ही अपने आप को कैंसिल आउट कर रहे हैं. अब देखिए ना, अगर मैं यहां भी अगर कोई कंपोनेंट लूं, यहां भी अगर मैं पॉइंट चार्ज लूं, इट विल आल्सो हैव सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. जो भी होगा उसे कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे कंपोनेंट पड़ा है. तो पैरेलली every component of electric field intensity, it is cancelling out. So it means I am only left with the electric field intensity due to a perpendicular component. ठीक है, मैं एक बार फिर से ये चीज आपको बना के दिखाता हूं. तो ये हमारा रिंग है और ये हमने एक चार्ज पहले मैंने Q1 यहाँ पे लिया, फिर Q2 यहाँ पे लिया, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है. तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस देख लीजिए, इट इज इजी टू डू. तो आई विल से इट विल बी DE1 एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी DE2, राइट. बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी DE2. तो अगर मैं इसे, आई नो दिस एंगल इज थीटा एंड इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, फॉर एवरी पॉइंट थीटा विल बी सेम. तो इस वजह से बिकॉज थीटा इज सेम, आई विल ऑलवेज हैव ए कंपोनेंट DE साइन थीटा, ये 2 की वजह से है, एंड आई विल ऑलवेज हैव ए कंपोनेंट DE1 साइन थीटा. इट विल कैंसिल आउट ईच अदर. तो आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ ये वाले कैंसिल कर रहे हैं, आप कोई और दिखाइए ना. अगर मान लीजिए अगेन आई एम टेकिंग दिस, अगेन आई एम टेकिंग ए रिंग, I am taking this two component and I am interested in calculating electric field intensity at this point. So you know this distance it will be R. वो चाहे दिखने में वैसा नहीं लग रहा क्योंकि फिगर we are drawing a 3D figure in 2D because of that. पर वैसे ही R distance सेम ही रहेगा. आप बड़ा सिंपल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यू कैन कीप एनी राउंड शेप बॉडी onto the ground और उसके ऊपर आप कुछ भी अपनी फिंगर रख लीजिए बिल्कुल सेंटर में, रफली सेंटर में, और आप देखिएगा कि क्या उसकी पेरिफेरी से, सरकमफ्रेंस से आपकी फिंगर टिप तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है. यू विल सी इट इज सेम. सो दैट इज व्हाई R इज सेम. तो उस वजह से अगर मेरा ये ऐसे जा रहा है, वन कंपोनेंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, माय वर्टिकल कंपोनेंट it will always cancel out the vertical component, और जो horizontal component हैं they will always add on.
ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन मेक आउट। तो अभी हमें पता चल गया जो हमारा नेट फोर्स है इट इज ओनली ड्यू टू द परपेंडिकुलर फोर्स। अब ये तो अभी के लिए हमने सिर्फ एक एलिमेंट क्या लिया है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन टू ए रिंग। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, वी विल जस्ट लुक इनटू दैट इन ए मिनट। तो अभी तक यहां तक समझ आ गया आपको? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट। तो वी नो अवर इलेक्ट्रिक। अब देखिए मैंने अब इसे मैंने पॉइंट चार्ज अज्यूम किया है, आई हैव अज्यूम दिस टू बी पॉइंट चार्ज। तो मेरा जो डीई रहेगा, मेरा जो डीई रहेगा इट विल बी, अब मैं नाउ आई कैन यूज कूलम्स लॉ। so it will be equivalent to k. I will consider it to be k. I will assume that medium is air. We are keeping the charges in air. So k dq by r square. ठीक है, तो ये अभी सिर्फ डीई आया है हमारा, पैरेलल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आया बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैव ए cos थीटा इन इट। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज आई कैन। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, तो देन I know that my k and r they are constant, right? हमें पता ही है अभी k और r जो है हमारे कांस्टेंट है। तो अब आप कहेंगे भी सर आप सभी कंपोनेंट्स की वजह से कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई विल से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ वन कंपोनेंट, and if I have to calculate because of all the point charges, it will be integral of this k dq by r square. It will be integral of this. पर उससे पहले हमें ये एक चीज तो we are very well aware of this, that we have to add or we have to integrate only our horizontal components. तभी तो नेट फोर्स आएगा ना। अब मैं अगर यहां से देखूं, यहां से, तो मेरा ई नेट है जो that will be only because of the perpendicular components or which are acting in horizontal direction। तो हमारे पास अभी है सिर्फ डीई। तो डीई इट वाज इक्विवेलेंट टू के dq बाय आर स्क्वायर। पर हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है we have to also consider the cos, so it will be dq by r square। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम सिर्फ इस वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं विच आर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट हैज cos into it, so it is de cos theta। we have already calculated de, now we multiply de with cos theta so that we can get only the horizontal components into cos theta। तो अभी भी ये स्मॉल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है विच इज बिकॉज ऑफ वन पॉइंट चार्ज जो हमने कंसिडर किया है। अगर हमें सारी की वजह से कैलकुलेट करना है तो आई विल से वी नीड टू इंटीग्रेट इट। So then we also have to do same operation on to the right hand side into cos theta। तो अब इंटीग्रेशन को सबसे इजी वे आउट सॉल्व करने का होता है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई योर कांस्टेंट एंड टेक देम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो आप कहेंगे सर के तो कांस्टेंट ही है, इट इज इक्विवेलेंट टू 9 into 10⁻⁹ फॉर एयर, और हर मीडियम के लिए के कांस्टेंट है फॉर बिकॉज अब this will be permittivity for a medium, this permittivity is constant, these two are already constant, so k it will also be constant for a medium। so I took k r square cos theta out of the integration and I am only left with integral of dq। you will say sir this
इट इज इक्विवेलेंट टू के cos थीटा। तो ये तो सारे चार्जेस ही ऐड हो रहे हैं ना आपस में, जो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं दे दे आर एडिंग अप विद ईच अदर। तो यहाँ पे डी क्यू है, यहाँ पे भी डी क्यू है, एंड सिमिलरली वी हैव डी क्यू हेयर, 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 वी हैव डी क्यू हेयर। तो दिस ऑल एड अप्स to make a one charge q. I will say yes. So this is equivalent to k r square cos theta into q. तो ये अभी completely solve नहीं हुआ है हमारा, but this is one equation which you got. अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, they will be asking you for to calculate the electric field intensity on an axis which passes through the center of the ring at a distance x. So you will be asked in terms of x. तो center में से ये distance x है. But now what we are having is we are having only a cos theta. तो हमें cos theta को किसी तरह x ही replace करना है. अब अगर यही बना लेते हैं, अगर ये वाला था, अगर मान लीजिए हमने ये वाला कंपोनेंट, ये वाला पॉइंट चार्ज अज्यूम किया था एंड वी वर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस, वी न्यू दिस इज थीटा, दिस इज आर एंड दिस इज कैपिटल आर, राइट? सो and from this I know my cos theta, it will be equivalent to adjacent by hypotenuse. So theta का adjacent है x, by hypotenuse it is r. So my x is equals to cos theta by r. तो आप कहेंगे सर भी क्या इतना ही है? मैं कहूंगा अरे रुको जरा, तो it will be equivalent to k. Sorry, we were to calculate, yeah, we already knew cos theta, we need not to do this. तो cos theta it will be equivalent to x by r. तो q is the charge, it is not theta, it is the charge, by r square into x upon r. ठीक है, तो it comes out to be k q by r cube into x. तो अब जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी विल आल्सो बी नॉट गिवन विद द आर, this small r. We will only be given with this r and we will only be given with this x. So again we can replace this small r in terms of capital R and in terms of x, क्योंकि हमें पता है by Pythagoras theorem r square, which is the hypotenuse for this triangle, it is equivalent to capital R square plus x square. So from this, if I plug in this into this, if I plug in this into this, I will get k q x by r square plus x square raised to the power 3 by 2. So this is the final answer which I have. So this will be the electric field intensity at distance x from the center of a ring. So this will be distance x. The electric field intensity, it will be equivalent to this. And if I ask you about the direction, I know there will be no vertical component because they will cancel out each other. So I will only have the horizontal components. So it will be in this particular direction. So it will be in this direction at this point P, and its magnitude, it will be equivalent to x. अब थोड़ा सा अगर, so there can be some very interesting problems which can be made out of this. Like if I ask you that when
x is equivalent to 0, x is equals to 0, what will be the electric field intensity? So I know that my net electric field intensity, it is equivalent to k q x by r square plus x square raised to the power 3 by 2. When I am putting x is equals to 0, my net electric field intensity, it will be 0. It means at center, my electric field intensity, it will be 0. ठीक है, उसका सीधा सा रीजन है. अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज अज्यूम कर रहा हूँ. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट, ये वाले पॉइंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट, एग्जैक्ट. तो बिकॉज ऑफ दैट माई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस टू दे विल कैंसल आउट ईच अदर. और सिमिलरली फॉर दिस I will have electric field intensity in this direction, and if I take a point charge which is exactly opposite to this, it will be acting in this direction and it will be exactly equivalent and opposite to this, and that is why it will be 0. ठीक है, तो because of symmetry of a ring, the electric field intensity at center of ring, it will be 0. Now suppose if I try to calculate the electric field intensity at a point for which my x is very 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 large than r. मतलब मैं electric field intensity because of a ring at a axis which is passing through the center कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एट ए डिस्टेंस x जो r से बहुत बड़ा है. तो इट मीन्स आई नो द फॉर्मूला फॉर दिस. आई विल राइट इट डाउन अगेन. इट विल आल्सो हेल्प यू टू रिमेंबर इट. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू k q x divided by r square plus x square raised to the power 3 by 2. Okay. So now my x is very very greater than r, so it means I can neglect r. So I am only left with kq x. So this is very large. I can neglect r because x is very very greater than r. So I will be left with this raised to the power 3 by 2. This it will cancel out. So I will only be left with kq x by x cube. It will be equivalent to kq by x square. तो अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर ये तो जाना पहचाना सा फॉर्मूला है. Yes, it is equivalent to the electric field intensity due to point charge at a distance x. ठीक है, और वो पॉइंट चार्ज पे चार्ज क्या है, क्यू. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग को जब हम बहुत दूर के डिस्टेंस से देखते हैं, सपोज दिस इज x एंड इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू r. जब हम रिंग को इतने रिंग की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतने दूर वाले डिस्टेंस पे कैलकुलेट करते हैं, फॉर दैट पॉइंट दिस रिंग एट x एट ऐसे पॉइंट चार्ज, तो इसीलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आया है ना. तो इसीलिए तो हमारा ऐसा आया वैल्यू, बिकॉज जब बहुत दूर कोई पॉइंट पड़ा है, द पॉइंट इट इज वेरी वेरी लार्जर देन द रेडियस ऑफ द रिंग, तो उस पॉइंट पे रिंग इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, अब हमने x इक्वल्स टू 0 पे देख लिया. एट x इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सेंटर पे हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इट इज 0. ठीक है, अब अगर हम x को इन्फिनिटी पे देखें, इन्फिनिटी पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो हमारी दैट इज 0. इन्फिनिटी एट वेरी फार अवे डिस्टेंस. ठीक है, एट वेरी फार अवे डिस्टेंस. अब इसमें से ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है कि अब हमने देख लिया कि बिकॉज ऑफ द रिंग
सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, ठीक है। तो विद इन दिस 2 points within the center of ring and within the infinity, at what point my net electric field, it will be maximum, किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगी, एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, ठीक है। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वी नो आवर ई नेट, इट इज इक्वलेंट टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी द डिस्टेंस इट इज वेरिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो डिस्टेंस इट इज वेरिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का कोई ऐसा वैल्यू निकालना है जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज इक्वलेंट टू 0। फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी with respect to 0 and we will try to equate it equals to 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी टुक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर raised to the power 3/2, and afterwards we will try to put it equal into 0, ठीक है। अब हमने एक चीज देखा है कि फॉर डेरिवेटिव्स यू माइट हैव रेड दिस, डेरिवेटिव ऑफ u by v with respect to x, it is equivalent to v square v into du by dx minus u into dv by dx, ठीक है। तो ये एक नोन फॉर्मूला है फॉर द डेरिवेशन, फॉर द डेरिवेटिव्स। तो वी विल पुट दिस फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंग टू दिस माय v इज द डिनोमिनेटर, तो मुझे सबसे पहले तो उसका स्क्वायर करना होगा। तो इफ आई टेक स्क्वायर आई एम ओनली लेफ्ट विद दिस। तो अब मुझे v को ऊपर भी लिखना है एज इट इज ही, डिवाइडेड बाय 3/2, and I have to take, so this two they will definitely they will come out of the derivative, तो ये मेरे डेरिवेटिव में से बाहर ही आ गए है ना, तो आई विल नॉट बी कंसिडरिंग देम। तो मैंने ये देखिए बाहर ही लिख दिए, इक्वल टू दिस इज की, आई विल जस्ट ट्राई टू बी मोर एस्थेटिक, सो आई विल राइट इट एज के क्यू, ठीक है। तो ये तो दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो दिस इज माय u, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, तो x का डेरिवेटिव with respect to x it will be equivalent to 1 minus u जो कि मेरा x है, सॉरी या which is x into derivative of this, ये v है ना हमारा, into derivative of this, तो it will be 3/2 into r square plus r square r square by r square, 3/2 minus 1, so 3/2 minus 1 is equals to 1/2 into derivative of this। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंस्टेड ऑफ आर इट विल बी एक्स हियर, तो इंस्टेड ऑफ आर इट विल बी एक्स हियर। तो सिमिलरली यहां पे भी अगर हमारा आर नहीं, दिस इज एक्स, yeah it will be x, by mistake I wrote it as r, it will be x, so here also it will be x and here also it will be x। I will again try to be more aesthetic,
So yeah, this will be x square. So this will be x square, and this will again be x square, and this will again be x square. So it will be equivalent to kq. तो ये तो एज इट इज ही आ गया है ना, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेज टू द पावर 3/2. हाँ सॉरी, हम वी वर हियर. आई विल लीड दिस, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. तो एक तो ये हो गया, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेरिवेटिव ऑफ v इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, and its derivative it will be 2x. ठीक है, तो it will be, I will try to take more space onto this side, so it will be equivalent to kq r square plus x square raised to the power 3/2 minus, देखिए 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, and I am left with 3x square into r square plus x square raised to the power 1/2 divided by r square plus x square the cube. तो ये मैंने सॉल्व कर लिया. नाउ इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम, I need to put it equivalent to 0. तो what I did is I put it equivalent to 0. तो जैसे ही मैंने equivalent to 0 डाला, तो ये उधर को जाके it will multiply with 0, it becomes 0, and this it will again become 0. So this total quantity kq divided by r square plus x square the cube, it becomes 0. So I am only left with r square plus x square raised to the power 3/2 minus 3x square into r square plus x square raised to the power 1/2. So from this, now what I can do is I can take r square plus x square raised to the power 1/2 common. So I am only left with r square plus x square. So I have taken 1/2 power out. So I am only left with 1 power. ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैंने 3/2 minus 1/2, yeah, I took 1/2 out, so it will be 3/2 minus 1/2. I am only left with this minus 3x square. तो yeah, so अगर मैं इसे थोड़ा सा और देखूं, it will be r square plus x square raised to the power 1/2 into r square minus 2x square. So I will be left with this. So either this term it will be equivalent to 0. We will try to keep it equivalent to 0. Or this term it will be equivalent to 0. So this will be r square equivalent to minus x square, or x square equivalent to minus r square, which is not possible. So this will be the case. So it means r square it will be equivalent to 2x square. So x square it will be equivalent to r/2. So x it will be equivalent to r/√2. So what does it mean? It means for a ring at a distance x which is equivalent to r/√2, my electric field intensity it will be maximum. ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता लग गया, अब हमें वैल्यू निकालनी है. तो वी ऑलरेडी नो दैट E net it is equivalent to kqx by, yeah, it will be r square plus x square raised to the power 3/2. ठीक है, ये देखिए हमने पहले सॉल्व किया था ना, we have already solved it.
Yeah, so it will be r square plus x square raised to the power 3 by 2. It will be r square plus x square raised to the power 3 by 2. So now we know x at which my electric field intensity it will be maximum. It is r by root 2 divided by r square plus r square बाय 2. ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे r by root 2 पुट किया तो r का तो स्केयर हो गया, तो root 2 it becomes 2 raised to the power 3 by 2, which is equivalent to k q into r by root 2 divided by 3 r square by 2 raised to the power 3 by 2. So now if we try to solve this, it will be kq r by root 2 divided by, तो ये देखिए पहले तो r square, तो this will cancel out with this square for r will cancel out with this, तो we are left with r cube. चलिए r cube लिख लिया हमने. Other thing is, so this is 3 by 2 raised to the power 3 by 2. So it will be under root 3 by under root 2 raised to the power 3. So it will be root 3 into root 3 into root 3 divided by root 2 into root 2 into root 2. So it will be equivalent to 3 root 3 divided by 2 root 2. Okay, so I will be left with 3 root 3 divided by 2 root 2. Okay, तो kq by root 2 into 2 root 2 divided by 3 root 3. Yeah, it will be r also there, and I will have 1 by r cube. So I will be left with kq. So this root 2 will cancel out. So this will be 2 kq. Yeah, 2 it will come this side. 2 kq divided by 3 root 3 into r square. So this is the value of the maximum electric field intensity which we will have. Now there may be another very important question. It may be to plot electric field intensity on two axes of a ring which passes through its center. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए we have this as a ring, तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है ऑन टू एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. तो ये हमारा x हो गया एंड दिस इज y. ठीक है, तो हमने अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर इट विल बी 0, हमने मार्क कर दिया. एट इन्फिनिटी बहुत दूर होगा तो इट विल बी 0, बट टिल देन it will be parallel to this y axis, this x axis. तो यहाँ पे 0 है, और जहां पे x हमारा इक्वलेंट टू r by root 2 है वहां पे वो मैक्सिमम होगी. तो इट विल गो समवट लाइक दिस. तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट दैट परफेक्ट, बट आई होप यू अंडरस्टूड. तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे मैक्सिमम है, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट टू reduce and it will
go very near to x-axis and at infinity it will become 0. ठीक है, तो ये तो हो गया अगर हम पॉजिटिव x लेते हैं. व्हाट अबाउट नेगेटिव x? In negative x, our this like in negative x, it will be like in negative x, it will become maximum say at minus r by root 2, है ना, क्योंकि अगर हम इधर इस साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस टू बी पॉजिटिव, दिस इट टेंड्स टू बी नेगेटिव, एंड सेम विल बी विद अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सेंटर पे तो वो जीरो ही है, इट विल रिमेन जीरो, and then it will go towards maximum, and again it will reduce and it will go like this. So this is how the electric field intensity due to a ring it will look like. So with this I will end this lecture here itself. So I hope you enjoyed this lecture और enjoy, और साथ के साथ I hope that you were able to understand the concepts. तो इसी तरह से ढेरों और वीडियोस के साथ आएंगे. We have just started with the electric fields. We will cover all the +2 and we will also cover all of the +1. और सिर्फ बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, we will also cover it from the competition point of view. So because of that, with this I will also humbly request you to kindly like our channel and to subscribe our channel if you have not done it yet. We will be immensely thankful to you, and we surely will bring a good content for you in the near future. Thank you.